Okay, okay. So, as Mukesh sir was mentioning, there has been some emergency at Anurag sir's place. So, due to which, I mean, in spite of the fact that he had joined, he had to exit. I think he has come in. He has come in. Let me just take him in. Yeah, sir. Hello. Good evening, sir. Uh, Good evening, sir. Yeah, good evening, Mr. Murli. Go ahead. Good. Right, sir. Mukesh sir. Okay, sir. Thank you so much. I understand that the situation at home front is not your health-wise. You're not keeping very well. In spite of that, thank you so much for agreeing to come and address this gathering. So we are very grateful to you, sir. I would like to invite Dr. Ranjan Roy to welcome to deliver the welcome address. Dr. Roy. Namaskar and Jai Hind to everyone. Season's greetings to all the attendees, those who have logged in. So, on behalf of Panchatantra Planet and Varanasi Sahodaya School Complex, warm welcome to each one of you. Today's session is a special session for the leadership series of Panchatantra Planet. And here our keynote speaker, our chief guest is none other than Sri Anurag Tripathi. Mr. Tripathi is, he doesn't require any kind of introduction. But as it is customary, I would like to just mention certain things about Anurag ji, that he is a senior bureaucrat, one who has cleared his IRPS in the year 1998, and after that, lot of experience gaining from his different walks of life, and after that he has headed the school also, and then he switched over to CBSE as a secretary. He took over in the year 2017. Now there are many other persons, those who are the heading CBSE, occupying that worthy post, but many of us probably not able to remember or recall names of those personnel, those who are there. But here, Sri Anurag Tripathi, with his passion of work, his sincerity, his dedication, his commitment, so many changes he has brought into CBSE system for its betterment, for the benefit of the school and school community, all the students and their future. So that way, we all are getting benefit of that today, and will definitely reap this kind of benefit to come. So he is one of the most important pillar of Indian education system that way. So today, in spite of his health condition, although it was not permitting him that much, but yet for his commitment, for his sincerity, for his dedication for the cause of education, he is here with us, overcoming all those difficult situations. So there are that way. So there are almost 10 leadership styles. So we know that there are almost 5 leadership styles are very popular, and COE of CBSE also promotes transformation style of leadership. So today, Anurag ji will talk to us
because of so many changes, paradigm shift has taken place, and in the light of NEP, thought. It seems that Dr. Roy had a network issue. He has been disconnected. Sir, before I invite you to address the audience, I mean, I would like to request, we would like to, in your presence, launch our Panchatantra platform's website. So I'll just take this opportunity to launch it, which is Panchatantra platform, panchatantraplanet.com. And this is the website that we have prepared for launch today. So this has all the information about the work that we are doing in terms of teacher training and the CPD that we are doing for teachers and principals. So there's a lot of work that we are trying at our end, and we look forward to your constant guidance in this respect. So in this opportunity, I would also like to take the privilege of honoring a very recognized and renowned academician who has been with us for a long time, who is Mr. Francis today. So we would like you to give us a minute to recognize him, Mr. Francis, and then, sir, we will move forward to your session itself. Binu, sir, can you just put up the slide in recognition of Francis, sir? Right. So, Francis, sir, has contributed immensely to the education fraternity and with his work and sincere contribution. So, he's well known among the fraternity, and I think we owe a lot to what has happened, different changes and new developments that have taken place. Francis, sir, please accept this token of our recognition. Mr. Anurag is here. Anurag, sir, from his presence, please accept this token. Thank you very much for honoring me, and it's my proud privilege to be part of this session, and especially in the presence of esteemed Secretary of CBSE, Sri Anurag Tripathi, sir. It's a great privilege for me. I'm really thankful to Panchatantra Planet and Varanasi Sahodaya for honoring me on this occasion. My special thanks to everyone who is attending this function. Thank you, Francis, sir. Sir, with this, I would like to, without taking much time, I would like you to give us your words of wisdom to all the audience present here, eagerly waiting to listen to you. Sir, over to you. Namaskar, respected Murli ji, Mr. Rai, and all members जो आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं. एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और क्षमा चाहता हूँ स्टार्टिंग के 15 मिनट्स चूंकि नेट कनेक्टिविटी अचानक लूज हो गई थी. मैं बेसिकली ऑफिस में भी नहीं हूँ, घर में भी नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम अचानक आई मेरे पास. खैर सॉर्ट आउट हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे. देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है और जिस पर हम सारे लोग डिबेट और डिस्कशन के लिए इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं, वो लीडरशिप का टॉपिक है. और हम में से जितने लोग आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं, ऑलमोस्ट वो सारे के सारे पेडागोजिकल लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में लीड कर रहे हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं. अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सी एक ऐसी स्किल है, कौन सी एक ऐसी कैपेसिटी है, कौन सी एक ऐसी कॉम्पिटेंसी है जो सबसे पहले आप अपने बच्चों में डेवलप करना चाहोगे, खुद के भीतर डेवलप करना चाहोगे, सोसाइटी में लेके आना चाहोगे, तो मैं निस्संदेह मैं लीडरशिप को पहला स्थान दूंगा. क्योंकि लीडरशिप एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंडर में बाकी सारी स्किल्स धीरे धीरे कोलैबोरेट हो जाती हैं. तो लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जिसको अगर बच्चे ने एक्वायर कर लिया, प्रिंसिपल्स ने एक्वायर कर लिया, टीचर्स ने एक्वायर कर लिया, हम सब लोगों ने एक्वायर कर लिया, तो बाकी आने वाली बहुत सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाती. लीडरशिप एक स्किल है और 21st सेंचुरी स्किल के रूप में इसको एक इंपॉर्टेंट रोल भी दिया गया है. हम सारे प्रिंसिपल और टीचर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जब हम कॉम्पिटेंसी और स्किलिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले
हमें 21st सेंचुरी का गोल सामने आता है, जिसको यूनेस्को ने, OECD ने, बाकी हर फ्रंट पर आकर के ये बताया है कि आने वाले समय में दुनिया में कौन कौन सी स्किल्स होंगी जिनकी मैक्सिमम डिमांड होगी। 21st सेंचुरी स्किल्स के रूप में जो डिफाइन की गई हैं, वो बताई गई हैं, ये वो स्किल्स हैं जो अगर आने वाले समय में स्कूल्स अपने बच्चों में डेवलप करेंगे तो उनके बच्चे फ्लोरिश करेंगे, सक्सेसफुल होंगे और कंट्री को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। वो 21st सेंचुरी स्किल्स बेसिकली लाइफ स्किल्स और लर्निंग स्किल्स के रूप में जानी जाती है। और जब लाइफ स्किल पर आते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट स्किल लीडरशिप की आती है, कि आपको अपने बच्चों में बचपन से प्रैक्टिस के द्वारा, अपने एग्जाम्पल के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के द्वारा लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना। एक छोटी सी इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, बात 80s के आसपास की है, जब एपीजे कलाम साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत पुराने समय की बात है। और एपीजे कलाम ने इसको अपनी बुक में इसको लिखा भी है। उस समय वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हुआ करते थे और उनको मिसाइल लॉन्च करनी थी, रॉकेट लॉन्च करना था। पूरे लगभग 4 वर्ष की मेहनत के बाद उस रॉकेट को लॉन्च करने का समय आता है। पूरी टीम थी, कई करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट हुए थे और एपीजे कलाम एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर लीड करने जा रहे थे उस मिसाइल को, उस रॉकेट को लॉन्च करने जा रहे थे। और जैसा कि प्रोसेस होती है, जब भी ये लॉन्च होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कंप्यूटर चीजों को बताता है कि कब किस समय क्या करना है, और उल्टी गिनती स्टार्ट होती है। पूरी टीम खड़ी रहती है, उल्टी गिनती स्टार्ट होती है। अचानक कुछ सेकंड पहले कंप्यूटर बोलना शुरू करता है, देयर इज ए डिफेक्ट, किसी एक पार्ट में, बेसिकली इंजन के एक पार्ट में डिफेक्ट है और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया जाए। कुछ सेकंड में एपीजे कलाम को निर्णय लेना था। उनकी 4 वर्षों की तमन्ना थी, 4 वर्षों की मेहनत थी, सक्सेसफुल होने जा रहे थे। और एज ए साइंटिस्ट एपीजे कलाम ने निर्णय लिया कि नहीं, कंप्यूटर गलत बोल रहा है, पूरे सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने जिम्मेदारी ली और उन्होंने अपने साइंटिस्ट को, जूनियर साइंटिस्ट को गो अहेड करने का ऑर्डर किया। लॉन्च कर दिया जाता है एंड कुछ देर के बाद वो रॉकेट वापस जा करके समुद्र में टिप कर जाता है, मिशन फेल हो जाता है। बहुत बड़ा शॉक था एपीजे कलाम के लिए। और कुछ ही समय बाद पूरे कंट्री में ये आलोचना शुरू हो जाती है कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए और मिट्टी में मिला दिया। प्रेस जो है, उस इसरो के बाहर प्रेस वेट कर रही थी आकर के कि ऐसा क्यों हुआ। जो एपीजे कलाम के बॉस थे उस समय, इसरो के चीफ थे, वो एपीजे कलाम के कमरे में आते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, उनको साथ लेते हैं और कहते हैं कि चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एपीजे कलाम के साथ हो जाते हैं, बैठते हैं और बोलना शुरू करते हैं। कौन? इसरो के चीफ। वो कहते हैं कि देखिए, फेल्योर्स लाइफ में होते रहते हैं और ये फेल्योर है, हम इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। एज ए चीफ, एज ए हेड, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं इस फेल्योर की। और फिर आश्वासन देते हैं कि हम एक दिन जरूर इस मिशन में कामयाब होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, लोग उस इंसिडेंट को भूल जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर वो प्रोजेक्ट फिर कंप्लीट होता है, रॉकेट फिर लॉन्च हो रहा होता है, एपीजे कलाम ऑर्डर करते हैं और रॉकेट लॉन्च होता है, मिसाइल लॉन्च होती है, सक्सेसफुल होता है। अब फिर उनके बॉस उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी सफलता है, तुम जाओ और तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करो। एपीजे कलाम जाते हैं, एड्रेस करते हैं और पूरा क्रेडिट एपीजे कलाम को मिलता है। एपीजे कलाम याद करते हैं, एक ट्रू लीडरशिप ये होती है कि जब कोई फेल्योर हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स को लेनी चाहिए, क्योंकि टॉप पर है। जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो पूरी टीम मोटिवेटेड होती है, पूरी टीम तब आगे बढ़ती है। और जब फेल्योर हो, जब किसी तरह का फेल्योर हो, तो टॉप बॉसेस को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सफलता मिले, सक्सेस मिले, तो पूरी टीम को उस सक्सेस का क्रेडिट दे देना चाहिए। ये छोटा सा उदाहरण एपीजे कलाम अपने जीवन में याद करते हैं और कहां से कहां पहुंचते हैं, और इन चीजों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रू लीडरशिप की, तो मैं फिर इस फ्रंट पे यही बात करूंगा
कि सबसे पहले तो हमें अपने को रेट्रोस्पेक्टिव वे में देखना चाहिए कि वेदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर हैं या नहीं। हम प्रिंसिपल्स हैं, हम टीचर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, क्या एक्चुअली हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हैं? और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि लीडरशिप है क्या, नेतृत्व है क्या, लीडरशिप है क्या, लीडरशिप की क्वालिटीज क्या होती हैं। और जब आप तलाशेंगे, जब आप सर्च करेंगे, जब आप पता करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी 1000 चीजें लीडरशिप में सामने आती हैं, मोर देन 1000 चीजें आपको मिलेंगी जो लीडरशिप के बारे में बताएंगी। अगर उनमें से कुछ चीजों को मैं आपको गिन करके बताना चाहूं कि किस तरह की चीजें हैं जो लीडरशिप में देखी जाती है, एक अच्छे लीडर में पाई जाती हैं, तो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इनोवेशंस, एक्टिव लर्निंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विजनरी लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, गुड लिसनिंग पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फेयर तरीके से जो है आप एटीट्यूड रखते हैं अपना, इंक्विजिटिवनेस, क्वेश्चनिंग, ह्यूमिलिटी, केयर फॉर अदर्स, सेल्फ डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, पैशन, पॉजिटिविटी, दीज आर द 100 क्वालिटीज जो किसी एक लीडर में पाई जाती है। अगर मैं इनको गिनाना शुरू करूंगा तो इसका नंबर खत्म नहीं होगा, और हम सबको मालूम है कि दीज आर द लीडरशिप क्वालिटीज। लेकिन जरूरत किस चीज की है? अगर आज हम इस वेबिनार और इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं इस प्लेस पर, जस्ट एक मिनट बंद कर दो, सॉरी, बेसिकली इंटरनेट की टीम अब पहुंची है। नो इशू। देखिए, आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करूंगा मैं, अगेन बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें करूंगा कि हमें अपने स्कूल में किस तरह की लीडरशिप देनी है जिससे हमारे स्कूल, उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चों की जो ग्रूमिंग है वो टॉप पर पहुंचे। तो मैं आप प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स और जो भी एजुकेशनिस्ट हैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार अपने को मुड़ करके देखें कि जो चीजें आप अपने बच्चों से चाहते हैं वो हम में और आपके भीतर कितनी है। पहली जरूरत इस बात को सोचने की है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं और सुन रहे हैं, और आप सब 20, 25, 30 इयर्स की सर्विस में है, टॉप लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मोर देन लैक्स स्टूडेंट्स आपने निकाले हैं। एक बार अपने को मुड़ करके देखें कि जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं वो हमारे और आपके भीतर कितना है। हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? सबसे पहले 21st सेंचुरी स्किल्स के तहत हम अपने बच्चों से यही चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर हो, हमारे बच्चे कोलैबोरेटिव हो, हमारे बच्चे क्रिटिकल थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर हो, और हमारे बच्चे जो हैं क्रिएटिविटी के लिए टॉप पर। क्या एज ए प्रिंसिपल, एज ए लीडर हम वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर हैं? हमारी लिसनिंग पावर, हमारी स्पीकिंग पावर, हमारी राइटिंग पावर क्या वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में है? क्या हम अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं? क्या कन्विंस कर लेते हैं? क्या हमें एज ए लीडर लोगों को अट्रैक्ट करना आता है? हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग हो। क्या हम प्रॉब्लम सोल्यूशन हमारे पास है? हमारे स्कूल में मोर देन 1000 पेरेंट्स आते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर, स्कूल में मोर देन 100 टीचर्स आते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर, मोर देन 100 स्टाफ आता है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर। क्या हम सॉल्वर हैं? समस्याएं तो दुनिया में आएंगी, लेकिन अगर हम सॉल्वर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, हमारे अंदर ये स्किल स्ट्रांग है, तो अपने स्कूल की सारी समस्या खत्म कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती तो हम स्कूल में हम फिर खुद एक प्रॉब्लम के रूप में हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर या क्रिटिकल थिंकर एज ए प्रिंसिपल हम कितने हैं, और रिव्यू करिए हम अपने को कि क्या हम समस्या समाधान के लिए स्कूल में हैं या समस्या क्रिएट करते हैं। तीसरी बात कम्युनिकेटर, कोलैबोरेटर। हम अपने बच्चों से कहते हैं कोलैबोरेट करो, टीम में काम करो, मिल करके काम करो, क्योंकि हमें मालूम है ना कि जब टीम कोलैबोरेट करेगी, जब हमारी मुट्ठी बंद होगी तो हमारी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता।
महात्मा गांधी ने भी अगर देश को इस स्वतंत्रता की स्थिति तक पहुंचाया तो उनके अंदर लीडरशिप थी, वो करोड़ों लोगों को लीड कर लेते थे, अकेले नहीं चले, मोर देन करोड़ लोग उनके पीछे चल पड़ते थे, उनकी लीडरशिप थी। तो एज ए प्रिंसिपल क्या हम कोलैबोरेटर हैं? सारे टीचर हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं? हम सारे टीचर्स को कन्विंस करते हैं? क्या हम सारी प्लानिंग को आपस में डिस्कस करते हैं? स्कूल में क्या पॉलिसी लानी है, टीचिंग लर्निंग में क्या चेंजेस लेकर के आना है, किस तरीके से टीचर्स को ट्रेंड करना है, किस तरीके से पेरेंटिंग करनी है, किस तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। दीज आर द इश्यूज जो विदाउट कोलैबोरेशन कभी नहीं आ सकता। एक अच्छा प्रिंसिपल अच्छा कोलैबोरेटर होता है। तो क्या एज ए लीडर, क्या एज ए प्रिंसिपल हमें कोलैबोरेशन की स्किल है? क्योंकि हम अपने बच्चों से चाहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेटिव स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। हम अपने बच्चों से कहते हैं एवरीडे इन्वेंशन करो, रिसर्च करो, नए नए प्रैक्टिकल्स करो, नई नई अप्रोचेस लेकर के आओ। क्योंकि जब बच्चे क्रिएटिव और इनोवेटिव होंगे, जब बच्चे आविष्कार करेंगे, जब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू नया नया काम करेंगे, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और उनकी क्षमता कई गुना ज्यादा आउटपुट देगी। क्योंकि जो आविष्कार करने वाला होता है, जो क्रिएटर होता है, जो इन्वेंटर होता है, वो 1000 टाइम ज्यादा बेनिफिट देता है, वो 1000 टाइम ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मतलब कोरोना की वैक्सीन किसी ने इन्वेंट की होगी, पूरी दुनिया को उसकी जरूरत पड़ रही है, उससे इकोनॉमी भी बूम पर जाएगी और प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो क्रिएटर एज ए प्रिंसिपल आप कितने हैं? समस्याओं, आपके यहाँ जो भी नई नई चीजें हैं, कितना आप क्रिएट करते हैं, कितना आप इनोवेट करते हैं, कितने नए तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर के आते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगर आप क्रिएटिव होंगे तो अब तक उसकी सारी अच्छी चीजें लागू कर चुके होंगे। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट लर्निंग स्किल्स, जिसमें कोलैबोरेटिव नेचर आता है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, कम्युनिकेशन आता है और क्रिएटिविटी आती है। ये 4 लर्निंग स्किल्स एज ए प्रिंसिपल हमारे भीतर हैं। अगर हैं तो हम वन ऑफ द बेस्ट लीडर हैं, और अगर हमारे अंदर नहीं है तो बच्चों की तरह हमें भी फिर सीखने की जरूरत है। सिमिलरली सेकंड पार्ट पर चलते हैं, लाइफ स्किल्स। जस्ट अ मिनट, बीच बीच में मुझे क्षमा करिएगा, हो सकता है मेरे गले में प्रॉब्लम हो। सेकंड पार्ट पे आते हैं, लाइफ स्किल्स। 21वीं शताब्दी में देश और दुनिया में सारे बच्चों में 5 इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल को विकसित करने की बात की गई है, और कहा गया कि 5 लाइफ स्किल अगर आपके बच्चे में होंगी तो बच्चा सफलता की बुलंदियों तक पहुंचेगा। वो लाइफ स्किल कौन सी है? उस लाइफ स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइफ स्किल है लीडरशिप। फर्स्ट लीडरशिप, देन फ्लेक्सिबिलिटी। एज ए प्रिंसिपल आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, दूसरे के विचारों को कितना अडॉप्ट करते हैं, दूसरों को कितना सुनते समझते और उसको फॉलो करते हैं। सिर्फ रिजिड रहते हैं, डिक्टेटरशिप रहती है, अपनी करते और कराते हैं, या सबको लेकर के फ्लेक्सिबल तरीके से एक नया सोल्यूशन देते हैं। सिमिलरली इनिशिएटिव, आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं। चुपचाप अपने दफ्तर में बैठ करके फाइलें देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, फीस चेक करते हैं, या आप जो है इनिशिएटिव लेते हैं चीजों की, नई नई चीजों को इनिशिएट करते हैं अपने स्कूल में। दुनिया में तमाम सारे बदलाव हर सेकंड होता है, एवरी सेकंड कोई ना कोई बदलाव दुनिया में हो रहा है एजुकेशन में। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा पेडागोजिकल लीडर उन बदलावों को इनिशिएट करता है अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में, अपने बच्चों के बीच, अपने टीचर्स के बीच। तो जितना बढ़िया इनिशिएटिव नेचर एज ए प्रिंसिपल आपका होगा, एज ए टीचर आपका होगा, एज ए लीडर आपका होगा, स्कूल उतना ही बेटर आपका चलेगा। प्रोडक्टिविटी, एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल प्रोडक्टिविटी की है। आप कितना नया प्रोड्यूस करते हैं, कितना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आपको आपके मैनेजमेंट ने एक स्कूल दिया है 5 साल पहले, जब स्कूल का रिजल्ट एवरेज था और जब स्कूल में 200 बच्चे थे। आफ्टर 5 ईयर आपने 2000 बच्चों तक पहुंचा दिया और रिजल्ट आपने 100% कर लिया, ट्रेनिंग आपने 100% कर ली। बेसिकली ये प्रोडक्टिविटी है, ये प्रोडक्टिविटी है। आप अपने को देखिए कि जब आपने ज्वाइन किया था और आज 5 साल के बाद कितना प्रोड्यूस किया, कितना रिप्रोड्यूस किया, कितना बढ़ाया। ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हम बच्चों में भी और आप प्रिंसिपल्स में भी चाहते हैं। एंड सोशल स्किल्स, एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सोशल स्किल है।
कि आप कितना सोशल स्किल रखते हैं, कितना सेंसिटिव है आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका अपने देश, समाज, इन्वायरमेंट को देखने का नजरिया, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करने का नजरिया, ये सोशल स्किल्स इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। तो दीज आर द 5 लाइफ स्किल्स जो हम अपने बच्चों में चाहते हैं। क्या? प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशिएटिवनेस, लीडरशिप एंड सोशल स्किल्स। ये हम अपने प्रिंसिपल में भी चाहते हैं, ये हम अपने पेडागोजिकल लीडर में भी चाहते हैं। तो मैं इसको अगर लास्ट में समराइज करूं तो दुनिया में OECD ने 21st सेंचुरी स्किल के रूप में एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है और बोला है कि आने वाले समय में स्कूलों को ध्यान रखना है उनके बच्चों में ये 4 लर्निंग स्किल्स और ये 5 लाइफ स्किल आनी चाहिए। जिसको मैं फिर रिपीट करूं तो कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेटिव स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये है आपकी लर्निंग स्किल्स। एंड लाइफ स्किल में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनिशिएटिवनेस, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल स्किल्स। ये 9 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जिसमें लीडरशिप एक पार्ट है। मैं कहता हूं अगर आप लीडरशिप पर अपने को डिवोट करेंगे तो बाकी 8 स्किल पिछले रास्ते से आपके भीतर आ जाएंगी। एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए लीडर, ये स्किल्स आप में किस लेवल तक है वो आपको चेक करना है। आप अपने पड़ोसी को, आप अपने कलीग प्रिंसिपल से, आप अपने कलीग टीचर से अपने को रिव्यू कराएं, अपने क्लासरूम के टीचर्स के क्लासरूम में रिव्यू करें कि ये स्किल्स किस लेवल तक आपके और इनके भीतर हैं। और ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए राय साहब ने शुरू में ही कहा, मुझे जो बोलने की बात की गई है वो लीडरशिप की है। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तब भी आपको मालूम है लीडरशिप क्या होती है। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तो भी आप एक क्लिक करिए इंटरनेट पर, लीडरशिप की 100 स्किल्स आपको मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप OECD डॉक्यूमेंट में जाइए, आपको लाइफ स्किल, लर्निंग स्किल मिल जाएंगे। तो पता तो सबको है, और नहीं पता तो एक क्लिक करिए, आपको मालूम चल जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। असली चैलेंज अब शुरू होता है मुरलीधर जी, राय साहब, असली चैलेंज अब शुरू होता है कि जितने पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं उनको मालूम है लीडरशिप क्या है, वो अपने भीतर कितनी अच्छी लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां चैलेंज स्टार्ट। और ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो सेल्फ, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होकर, पैशन के साथ, भूख के साथ, हार्ड वर्क के साथ, प्रैक्टिस के साथ इसको डेवलप करना है। एक अच्छा लीडर पैशनेट होता है, हार्ड वर्कर होता है, हमेशा नई नई चीजें सीखता रहता है, भूखा रहता है नई नई चीजें करने के लिए। एक अच्छा लीडर इन चीजों को अपने भीतर लगातार डेवलप करता रहता है। आज अगर हम इस इशू पर डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार आप सबसे निवेदन है कि आप अपने को तलाशें और टेस्ट करें। और एक चीज हम आपसे और बताएं, बहुत सारे ऑनलाइन टेस्टिंग्स हैं जो पर्सनालिटी टेस्ट करती है, और मुरली जी हैं और राय साहब हैं, इन सबको पता, हम अपने बच्चों को टेस्ट कराते हैं। कभी हम प्रिंसिपल्स ने अपने को टेस्ट कराया है? हम टीचर्स ने टेस्ट कराया? आप ऑर्गेनाइज करिए। मैंने अपने को टेस्ट किया है, और जब मैंने अपने को टेस्ट किया तो मैं सरप्राइज था। जिस स्कूल को मैं अपनी स्ट्रांग समझता था मेरी नंबर 3 पे थी, और जिसको मैं 5th पे समझता तो मेरी नंबर 1 पे थी। और फिर मैंने अपना वे आउट, धीरे धीरे मैंने रास्ता बनाया कि एक बार आपको पता हो कि आपके अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है और आपकी वीकनेस है वो क्या है, उसके बाद आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक अच्छी लीडरशिप वो होती है जो लगातार सीखती रहती है, नीचे वालों को सीखने के लिए पूरा एटमॉस्फेयर देती है, लिबर्टी देती है, कोलैबोरेट करती है, और जो स्कूल है, जो बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नए नए रास्ते खोलने के लिए एक अच्छा माहौल देती है। एक उदाहरण आपको दूंगा, दुनिया में जब भी आपको लीडरशिप पर बात करनी हो और कोई भी कंफ्यूजन लीडरशिप पर हो, अपने सबसे फेवरेट लीडर को याद करिए और देखिए उसमें क्या क्वालिटीज थी। नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया जानती है, और उन्होंने अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को एक लंबी गुलामी के बाद मुक्त कराया था। जो अहमियत हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की है, वही अहमियत दक्षिण अफ्रीका में उससे भी ज्यादा नेल्सन मंडेला की है।
नेल्सन मंडेला 32 साल तक जेल में थे और अंधेरी कोठरी में थे, खिड़की नहीं थी, रोशनी नहीं आती थी, 6 बाई 6 फीट की कोठरी थी। 32 वर्षों तक नेल्सन मंडेला ने धैर्य रखा और अपना दिन आने का इंतजार किया, लेकिन हार नहीं मानी, और उनकी जीत होती है और वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। ये लीडरशिप होती है। पेशेंस उनका देखिए, 32, यहां हम 32 मिनट पेशेंस नहीं रख पाते। हमारे क्लास 40 मिनट की हमारी क्लास में हम 40 मिनट में 10 बार पेशेंस लूज करते हैं अगर बच्चे हमको परेशान करते हैं। 32 वर्ष तक नेल्सन मंडेला जेल की कोठरी में इंतजार करते रहे और अंत में जीत करके निकलते। महात्मा गांधी, जितने भी लीडर्स हैं, कभी भी लीडरशिप की बात करनी हो तो लीडर्स को याद करिए और देखिए उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी, उनका जीवन कैसे था। महात्मा गांधी बैरिस्टर के बेटे थे, अमीर थे, अमीर घर में पैदा हुए थे, लंदन में वकालत करते थे, लंदन से अफ्रीकन कंट्रीज में वकालत के केस लड़ने जाते थे, अच्छे पैसे मिलते थे। और एक बार जब जोहान्सबर्ग की ट्रेन जर्नी में किसी अंग्रेज ने धक्का मार करके उनको फर्स्ट क्लास की बोगी से नीचे गिराया था, जबकि टिकट उनके पास था, इसलिए वो बाहर गिराए गए थे क्योंकि वो ब्लैक थे। देन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस दुनिया से रंग भेद मिटा के रहूंगा। और नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला के पहले लगभग 20 इयर्स तक, 1940s तक, 1930s 1940s तक वहां रह करके इन चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और वापस अपने देश आते हैं। जो व्यक्ति लगातार फर्स्ट क्लास की बोगी में सफर करता रहा, जो सूट बूट और टाई में रहता रहा, जिसने लंदन से पढ़ाई की हो, जो अफ्रीका में जाकर के वकालत का केस लड़ता रहा, जब हमारे देश में खाने को नहीं मिलता उस समय जो विदेश में रह रहा, वो व्यक्ति सारा कुछ छोड़ देता है और एक धोती पहन करके पूरा जीवन निकाल देता है और आपके देश में आंदोलन पर आंदोलन, रिवॉल्यूशन पर रिवॉल्यूशन करता चला जाता है, पूरे देश को साथ ले लेता है। छोटी मोटी लीडरशिप नहीं थी, एक आवाज उठाते थे और करोड़ों लोग अपने घर से बाहर निकल पड़ते थे। कितने सारे नियम कानून अंग्रेजों ने जो गलत बनाए थे, महात्मा गांधी ने तोड़ करके हमको रास्ता दिखाया, चाहे वो नमक कानून हो, चाहे, उदाहरण क्यों दे रहा हूं, ये वह लीडर्स हैं जो अपने उदाहरण से प्रूफ करते हैं कि दुनिया को किस दिशा में जाना है, कहां लेकर के चलना है। एक छोटी सी स्टोरी महात्मा गांधी की बताता हूं। एक कोई पेरेंट एक बार महात्मा गांधी के पास आता है, एक कोई पेरेंट महात्मा गांधी के पास आता है और महात्मा गांधी से कंप्लेन करता है कि जो मेरा ये बेटा है, वो कंप्लेन करता है कि जो मेरा ये बेटा है ये मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाता है, मीठी चीजें बहुत ज्यादा खाता है, इसको समझाइए। गांधी जी उस दिन उसको विदा कर देते हैं, कहते हैं 10 दिन बाद आना। वो व्यक्ति 10 दिन बाद फिर आता है। उस दिन गांधी जी उसको समझाते हैं कि तुम्हें मीठी चीज नहीं खानी चाहिए और मीठी चीज खाने के ये नुकसान होते हैं। पेरेंट कहता है यही करना था तो 10 दिन पहले बता दिए होते, 10 दिन बाद क्यों बुलाए? बोले 10 दिन पहले मैं भी बहुत मीठा खाता था और मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता था। जब मैं खुद खाता था तो मैं कैसे उसको समझा देता कि मीठा मत खाओ, पहले मुझे 10 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ी और मीठा मैंने छोड़ दिया। ये लीडरशिप होती है, हमें खुद को पहले बनाना पड़ता है और फिर हम दूसरा उदाहरण देते हैं। दुनिया में जितनी भी लीडरशिप आप देखिए, आपने एपीजे कलाम का उदाहरण दिया, हमने आपसे जस्ट डिस्कस किया कि रॉकेट जब फेल होता है तो इसरो के चेयरमैन जिम्मेदारी लेते हैं और सक्सेस होती है तो अपने शिष्य को देते हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक दूसरे मिशन पर हमारे देश के साइंटिस्ट लगे हुए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय सेंटर पर थे और जब हमारा मिशन फेल होता है वो इसरो के चीफ को गले लगा लेते हैं और इसरो के चीफ रोना शुरू कर देते हैं। आप इस देश की लीडरशिप देखिए कि एक साइंटिस्ट, पूरा का पूरा मिशन फेल होता है लेकिन प्रधानमंत्री उसकी पीठ ठोक रहे होते हैं, कोई बात नहीं, हम फेल आज हुए तो कल को सफल होंगे, और आगे बढ़ जाते हैं और मिशन आगे चल निकलता है। यही स्कूल में करना होता है। एज ए प्रिंसिपल आप पेडागॉजिकल लीडर हैं, आप अपना, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे कोलैबोरेटर हैं,
अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे क्रिटिकल थिंकर हैं, लीडर हैं, तो आपके बच्चे वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डिक्टेटर हैं, आप लोगों को डिमोरलाइज करते हैं, आप डिप्रेस करते हैं, आप कंट्रोलिंग हैं, आप लिबर्टी नहीं देते, आप चीजों को इक्वलाइज नहीं करते, अब आप अपने हितों के लिए तो आगे रहते हैं लेकिन दूसरों के हितों को नहीं देखते, आप पावर डेलीगेट नहीं करते, आप लोगों को मोटिवेट नहीं करते, आप लोगों को चार्ज नहीं करते, आप लोगों को इंस्पायर नहीं करते, तो फिर वो प्रिंसिपलशिप किसी कार्य की नहीं है। क्योंकि आज सारे के सारे प्रिंसिपल्स इस फोरम पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज को कह रहा हूं कि सबसे अच्छी लीडरशिप वो होती है जो आप अपने एग्जाम्पल से, अपने बिहेवियर से, अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करते हैं। जो आप करते हैं, आप लीड, इंस्पायर और कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों को बोलें कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, और शाम को आप ही 4 बार झूठ बोल चुके हो। होता ना, बच्चे कोई रोबोट नहीं है, बच्चे हमको आपको देख करके बनते और बिगड़ते हैं। एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, जैसे हम रिफ्लेक्ट करेंगे वही बच्चों में वापस जाएगा। और ब्लूम्स मेरे प्रिय, कह सकता हूं, एजुकेशनिस्ट रहे और बार बार मैं जिक्र करता हूं, तो ब्लूम्स ने भी यही कहा कि आप ज्ञान तो दे लेंगे, नॉलेज तो दे लेंगे, वो तो आप रटा करके, पढ़ा करके, समझा के, एक्सपीरियंस करा के, क्रिएट करा के कर लेंगे, लेकिन आप पर्सनालिटी नहीं बना पाएंगे, आप करेक्टर नहीं बना पाएंगे। पर्सनालिटी और करेक्टर के लिए आपको अपना उदाहरण देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, हैबिट डालनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए देश में बहुत सारे बच्चे टॉप भी करते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, ऑफिसर भी बनते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन जेल भी जाते हैं, क्राइम भी करते हैं, गलत कार्य भी करते हैं। कितना स्प्लिट पर्सनालिटी है, एक तरफ तो सफलता के पीक पर और दूसरी तरफ पर्सनालिटी डिप कर रही है। दोनों थोड़ा सा डिफरेंट आयाम है। एक नॉलेज पार्ट है जो आपको सक्सेस दे देगा और टॉप पर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक पर्सनालिटी का पार्ट है जो प्रैक्टिस करने से आएगा, जो ऑब्जर्व करने से आएगा, जो रिफ्लेक्ट करने से आएगा, जो अच्छी आदतें डालने से आएगा। तो एज ए लीडर, एज ए प्रिंसिपल, ब्लूम्स की दोनों चीजों को लेके आप चलते हैं कि नहीं? आप ब्लूम्स के कॉग्निटिव नॉलेज को भी लेके चलते हैं और अफेक्टिव डोमेन को भी लेके चलते हैं। कॉग्निटिव में आप उनको नॉलेज से लेकर क्रिएटिविटी तक पूरी चीजें सिखाते हैं और 100 में 100 नंबर देते हैं। अफेक्टिव डोमेन में आप उनको तमाम सारे तरीकों से सिखाते हैं। क्या? आर्ट इंटीग्रेट करके, स्पोर्ट इंटीग्रेट करके, सब्जेक्ट इंटीग्रेट करके, लाइफ इंटीग्रेट करके, एम्प्लॉयबिलिटी इंटीग्रेट करके, राइट? ये तमाम तरीके हैं जिसके द्वारा आप बच्चों के व्यक्तित्व को ग्रूम करते हैं। सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, उसको डांस भी करना सिखाते हैं, उसको खेलना भी सिखाते हैं, उसको प्यार करना भी सिखाते हैं, उसको शेयरिंग केयरिंग की आदत भी सिखाते हैं। ये पर्सनालिटी को डेवलपमेंट के तरीके हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी इन सारी चीजों से भरी हुई है। नट सेल में अगर एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, एक अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है, एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, 21वीं शताब्दी की स्किल्स डेवलप करनी है, तो स्कूलों को कुछ नए नए कार्य करने पड़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस पर मैं 50 बार बोल चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर रहे होंगे, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी अब घर घर तक पहुंच गई है, बच्चा बच्चा उससे अवेयर हो गया। ये पहली बार मैं देख रहा हूं, फर्स्ट टाइम, जब किसी पॉलिसी को लेकर इतनी चर्चा हुई हो। और पॉलिसी की सफलता का पहला अध्याय यही होता है, आप उसका प्रचार करिए, आप उसका प्रसार करिए, आप उसको फैलाइए, अवेयरनेस फैलाइए, घर घर तक कन्विंस करिए, पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को, उनको टूल्स के बारे में बताइए कि पॉलिसी क्या है, इसका आउटकम क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, करेंगे तो क्या फायदा है। पहले कन्विंस करिए, अवेयर करिए। एक बार प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, अब बच्चा रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है, अब आप उसको अपने स्कूलों में लागू कर दें। पॉलिसी भी यही कहती है कि हमारा ऑब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ
बच्चे को कुशल बनाना भी है, ज्ञान के साथ साथ स्किल्ड करना भी है, राइट। बच्चे को आप सोशल साइंस का ज्ञान दे दीजिए लेकिन सोशल बिहेवियर नहीं आए तो सोशल साइंस किस काम की। बच्चे को साइंस का ज्ञान दे दीजिए, उसको लाइट पढ़ा दीजिए, उसको कार्बन पढ़ा दीजिए, उसको बायो पढ़ा दीजिए, उसको रिप्रोडक्शन पढ़ा दीजिए, उसको सब कुछ पढ़ा दीजिए, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर नहीं आए, साइंटिफिक अप्रोच नहीं आए, अंधविश्वासी बना रहे, नई नई क्रिएटिव चीजें नहीं आए, तो साइंस पढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं। आप मैथ पढ़ा दीजिए लेकिन बच्चा लॉजिकली सोच नहीं सके, लैटरल तरीके से थिंकिंग नहीं डेवलप करे, इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं बने, मैथ पढ़ाने से क्या फायदा। आप लैंग्वेज पढ़ाइए, आप कविताएं कहानियां रटाइए, लेकिन बच्चा अगर अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनता, अच्छा पोएट नहीं बनता, अच्छा राइटर नहीं बनता, तो पढ़ाने का क्या फायदा। सिमिलरली आप बच्चों को स्पोर्ट्स कराते हैं, बच्चा स्पोर्ट फील्ड में लेकिन फिजिकली फिट नहीं है, तो स्पोर्ट्स का क्या बेनिफिट। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपकी क्लासरूम की लर्निंग है, वो तभी सबसे अच्छी मानी जाएगी जब वो बच्चों के यूज में आएगी, जब जीवन के काम आएगी, जब एम्प्लॉयमेंट के काम आएगी, जब उनका जीवन बेहतर होगा। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसकी शुरुआत होती है लीडरशिप से। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिसको अक्वायर किया जाता है, जरूरी नहीं कि बाई बर्थ आप में हो, जिसको अक्वायर किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण देते थे संसद में तो पूरी संसद पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुनती थी। ये एक कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो लीडरशिप एक स्किल है जिसमें तमाम सारी चीजें एक्वायर की जाती हैं, उसके लिए बड़ी मेहनत, पैशन और भूख लानी पड़ती है। और अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आगे बढ़िए, और एजुकेशन पॉलिसी आपको पूरा फ्रंट मेहनत करने के लिए देती है। जस्ट अ मिनट। मैं फिर कहूंगा, हम सबको पता है लीडरशिप क्या है। आप अपने सबसे अच्छे नेतृत्वकर्ता को याद करिए, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे बराक ओबामा हो या अब्राहम लिंकन हो। याद करिए, उसकी क्वालिटीज को देखिए, अपने को एक बार रिफ्लेक्ट करिए कि क्या चीजें आपके अंदर है और क्या आपको डेवलप करना है, और उनके तहत अपने को बढ़ाने का प्रयास करिए। दूसरा, नई एजुकेशन पॉलिसी आपके सामने है। एक अच्छे लीडर की तरह, एक अच्छे पेडागॉजिकल लीडर की तरह उस पॉलिसी को रीड करिए, पेरेंट्स और टीचर को अवेयर करिए, क्विज कराइए, डिस्कस करिए, वेबिनार करिए, सेमिनार करिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए, छोटे छोटे समूह डेवलप करिए और उनको काम दे दीजिए कि तुम्हें टीचर्स ट्रेनिंग पर देखना है, तुम्हें पेडागॉजी पर देखना है, राइट। टीचरों का ग्रुप बनाइए, बच्चों का ग्रुप बनाइए, आप टीचर और बच्चों के ग्रुप को कोलैबोरेट करिए पूरे स्कूल में और बोलिए ना कि ठीक है, इस महीने ये ग्रुप टीचर ट्रेनिंग पर नए काम करेगा। आप बच्चों को काम दीजिए, आप अपने बच्चों को टीचर ट्रेनर बना लीजिए। आप देख लीजिए आपका स्कूल इंप्रूव करना शुरू हो जाएगा। हम सोचते हैं कि हम ऊपर से ट्रेनर लेके आएंगे, अब आप अपने बच्चों को ट्रेनर के रूप में यूज करिए, फिर देखिए क्या जंप होता है। तो छोटा छोटा समूह बनाइए, बच्चों का भी, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी, और एनईपी के छोटे छोटे पार्ट को आप लगातार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते रहिए। किसी को टीचर्स ट्रेनिंग में, किसी को पेडागॉजिकल लीडरशिप में, किसी को 360 डिग्री असेसमेंट में, किसी को वोकेशनल सब्जेक्ट को कैसे हम स्किलिंग के तहत लेके आए, कैसे घर घर तक लेके आए, उसमें ये चीजें धीरे धीरे लागू होना शुरू हो जाएंगी। तो एज ए पेडागॉजिकल लीडर, एज ए एनईपी लीडर, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं इन चीजों को आप छोटे छोटे समूहों को लगा करके अपने स्कूलों में इंप्लीमेंट कर रहे होंगे और आगे करेंगे। एक छोटा सा जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा, क्योंकि आपका ये आज इनॉग्रेशन है और ये लंबा चलेगा। मेरी शुभकामना आप सबको, आप सारे लोगों को है, लेकिन आनंद तब आएगा जब हम लीडर्स पैदा करेंगे, जब हम लीडर्स बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे,
तभी आनंद आएगा, क्योंकि लीडर वो नहीं होता जो बरगद की तरह होता। बरगद का वृक्ष हम सब जानते हैं ना, बरगद के वृक्ष के नीचे कोई दूसरा पौधा नहीं बढ़ने पाता, क्योंकि बरगद बाकी किसी को डेवलप नहीं होने देता। लीडर ऐसा नहीं होता। वो लीडर नहीं होता है जो डिक्टेटर हो और जो खुद ही दिखाई पड़े, बाकी कोई नहीं दिखाई पड़े। लीडर वो होता है जो अपने जैसे 1000 लोगों को जनरेट करता है, एनर्जी इम्बाइब करता है, एक लहर चलाता है, और उसके जैसे लोग फिर देश और दुनिया को बदलते हैं। महात्मा गांधी के समय में ऐसे 1000 लीडर जनरेट हुए थे, हर कोने से नए नए लोग खड़े हो रहे थे। लीडर वो होता है जो अपने टीचर्स को प्रिंसिपल की काबिलियत सिखाता है। जिस प्रिंसिपल के मैक्सिमम टीचर उसके रहते रहते प्रिंसिपल बन जाते हो, सोचो कैसा लीडर होगा। जिस टीचर के मैक्सिमम बच्चे उस टीचर के पढ़ाते पढ़ाते दुनिया की टॉप मोस्ट पोजीशन होल्ड करते हो, सोचो टीचर कैसा फील करता होगा। जिस पेरेंट्स के बच्चे उससे ज्यादा सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हो, पेरेंट्स कैसा फील करता हो। यही लीडरशिप है। तो एक अच्छा लीडरशिप हमें तभी डेवलप हम कर पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने भीतर मुड़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि स्पीचेस देने से, भाषण सुनने से कभी भी लीडरशिप डेवलप नहीं होती है। मेहनत करने से, प्रयास करने से, प्रैक्टिस करने से, हैबिट डेवलप करने से, गलत आदतों को छोड़ने से, अच्छी आदतों को अपनाने से ही हम अच्छे और बड़े लीडर बनते हैं। एक दो इंसिडेंट आप सारे लोग, इस समय ओलंपिक चल रहा है और आज सारे लोग देख रहे हैं और रोज हम सुनते रहते हैं, और वो दोनों इंसिडेंट का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। आपने अभी परसों की बात है, 2 दिन पुरानी बात है, स्टोरी देखी होगी कि कतर और आई थिंक पेरिस, फ्रांस या पेरिस, कहां का था, जो हाई जंप के दोनों थे। ऐसी स्थिति आती है जब दोनों प्लेयर इक्वल मार्क्स गेन करते हैं, इक्वल हाइट। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल की फाइट थी ओलंपिक में। दोनों प्लेयर इक्वल रैंक लेकर के आते हैं। उनको 3 चांस मिलता है। जब नंबर दोनों के बराबर हो जाते हैं, 67.2 या 67.5 मीटर की हाइट, कुछ थी, मैं भूल रहा हूं, मिस कर रहा हूं। जब दोनों के अंक बराबर हो जाते हैं तो 3 मोर चांसेज उनको दिए जाते हैं। जो कतर का खिलाड़ी था वो अपना जंप लेता है, लेकिन जो पेरिस का खिलाड़ी था, सेकंड जंप के बाद उसके पैर में चोट लग जाती है और उसको क्विट करना पड़ता है। पेरिस के खिलाड़ी को क्विट करना पड़ता है। जाहिर है गोल्ड मेडल किसको मिलना था? कतर के प्लेयर को मिलना था। जो कोच था, जो उस समय जो उस रेफरी थे, वो कतर के प्लेयर से पूछते हैं कि आप अपना चांस लोगे? वो इंक्वायर करता है कि चांस ले, क्या मैं चांस छोड़ भी सकता हूं? और उसको बताया जाता है अगर तुम भी अपना चांस विड्रॉ कर लोगे तो गोल्ड मेडल शेयर हो जाएगा, लेकिन तुम चांस लोगे तो तुम्हें गोल्ड मेडल मिल जाएगा। वो अपना चांस विड्रॉ कर लेता है। वो कतर का प्लेयर अपना चांस विड्रॉ कर लेता है और वो कहता मैं गोल्ड मेडल शेयर करूंगा, क्योंकि फेयर नहीं होगा, ये जस्टिस नहीं होगा कि मेरे बराबर का खिलाड़ी चोट लगने के कारण बाहर हो गया है और गोल्ड मेडल दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। ऐसे उदाहरण इस ओलंपिक्स में देखने को मिल रहे हैं। इसी ओलंपिक में दूसरा उदाहरण भी देखा जा रहा है, जब एक प्लेयर एक लाइन पर गलत रुकता है और पीछे का प्लेयर पुश करके वहां तक पहुंचाता है। वो कहता मैं जाके अपनी माँ को क्या बताता कि मैं इसलिए जीत गया, मैं चीट करता। ये लीडरशिप है। दी आर द लीडरशिप्स। जब हम अपना हक छोड़ देते हैं, जब हम अपनी चीजें छोड़ देते हैं दूसरों के लिए, जब हम अपना बलिदान कर देते हैं, जब हम देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अपनी सारी चीजें त्याग देते हैं, और ऐसा कार्य लीडर्स ही कर सकते हैं, और जिसके लिए आज हम यहाँ डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सारे प्रिंसिपल से और टीचर से, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो सारी क्वालिटीज में टॉप पर है। सॉरी।
सर या सॉरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेडागॉजिकल लीडर्स हैं, वो अपने स्कूल्स में एक नई लीडरशिप को जन्म दे रहे होंगे। एनईपी को पूरे पैशन के साथ उसको जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे होंगे। किताबें बहुत सारी लिखी गई हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है लेकिन उसकी सारी चीजें आज तक हम फॉलो नहीं करते, वैसे ही एनईपी भी रह जाएगी किताब की तरह अगर हम फॉलो नहीं करेंगे। और फिर आने वाले समय में हम ही और आप इस देश को दोष देंगे कि हमारे बच्चे स्किल्ड क्यों नहीं होते, कॉम्पिटेंट क्यों नहीं होते, हमारे बच्चे समाज में 4 अक्षर बोल क्यों नहीं पाते, लिख क्यों नहीं पाते, क्रिएट क्यों नहीं कर पाते। हम ही और आप दूसरे मंचों पर डिस्कस करेंगे कि 125 करोड़ की आबादी में 2 गोल्ड मेडल भी क्यों नहीं ले पाते, 70 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी 40 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन क्यों बैठे हुए हैं। दीज आर द क्वेश्चंस, जो ज्वलंत प्रश्न है कि हम ओलंपिक में कहाँ हैं, हम जीडीपी में कहां पर हैं, करेक्टर की बात कर ले, क्राइम की बात कर ले, तमाम सारी वायलेंस की बात कर ले, अनइक्वालिटी की बात कर ले, हम में से हर दिन रोज हम डिस्कस करते हैं और हम ही टीचर और प्रिंसिपल इन बच्चों को बनाते और बिगाड़ते हैं, हमारे आपके हाथों से निकलते हैं। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, उसमें भी हमारा ही दोष है, और स्कूल में पढ़ने के बावजूद क्रिमिनल बन रहा है, वहां भी हमारा ही दोष है, और अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद भी समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा, वहां भी हमारा। लेट अस एक अच्छे लीडर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें कि हमें एक अच्छे लीडरशिप किस तरीके से डेवलप करके अपने स्कूलों को, बच्चों को, पेरेंट्स को आगे लेकर के चलना है। और ये बड़ा कार्य नहीं है, तो ऐसे 1000 टीचर और प्रिंसिपल हैं जिन्होंने लोगों को बनाया है, जिन्होंने लोगों को डेवलप किया है, जिन्होंने लोगों को क्रिएट किया है, आगे बढ़ाया है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं ना, एडिसन का, बचपन में जब उसकी टीचर ने कहा कि स्लो लर्नर है और बोला कि बेटा तुम घर जाओ, एक स्लिप उसकी जेब में रखती है और कहता अपनी माँ को जाके दिखा देना। माँ स्लिप देखती है, उसमें लिखा रहता है कि तुम्हारा बेटा स्लो लर्नर है, इसको घर में रख करके पढ़ाओ, बाकी बच्चों के साथ ही डिस्टर्ब कर रहा है, कोप अप नहीं कर पा रहा। तो एडिसन अपनी माँ से पूछता है, माँ उस स्लिप में क्या है, क्योंकि माँ रो रही होती उस समय। तो माँ कहती कुछ नहीं, टीचर ने लिखा है कि तुम्हारा बच्चा ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि क्लासरूम में बाकी बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर सकता। वो कह रही तुम घर में रह करके पढ़ो, और माँ प्रतिज्ञा करती है कि मैं इसको अपने घर में रख करके पढ़ाऊंगी। और जब माँ की डेथ होती है, और लोग ऐसा कहते हैं, ऐसी किंवदंती भी हो सकती है, सच्चाई भी हो सकती है, कि जब वो संदूक खोलता है और स्लिप निकलती है तो रोने लगता है, क्योंकि वो देखता है उसमें तो लिखा हुआ है कि तुम्हारा बच्चा तो स्लो लर्नर है, मंद बुद्धि है, घर में रख करके पढ़ाओ। और कहता है कि माँ तुमने एक मंद बुद्धि एडिसन को दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। वो रोने लगता है। ये एक टीचर की खासियत होती है, एक लीडर की खासियत होती है, एक मदर की खासियत होती है। असीम संभावनाएं आपके बच्चों में है, अपरिमित संभावनाएं हैं। छोटा सा बीज होता है ना, उसको जमीन में बो दीजिए, कहां से कहां पहुंच जाएगा। और कुछ मत करिए, ऐसे बच्चे होते हैं, आपके बच्चों में इन्नेट आइडियाज हैं, लिबर्टी दीजिए, एम्पावर करिए, मोटिवेट करिए, चार्ज करिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, ग्रो करने लायक एटमॉस्फेयर दीजिए। वो ओलंपिक नहीं, कहां से कहां निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे, क्रिप करेंगे, सप्रेस करेंगे, रटाएंगे, सिर्फ नंबरों की रेस में दौड़ाएंगे, सेल्फिश रहेंगे, डिक्टेटरशिप रहेंगे, पार्टिसिपेटिव नहीं होंगे, रोड लर्निंग की तरफ बढ़े रहेंगे, एक्सपीरियंशियल नहीं होंगे, आर्ट इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, तो बच्चे कहीं नहीं आगे बढ़ेंगे। तो एनईपी भी यही कहती है, लीडरशिप भी यही कहती है, आने वाले समय में जरूरत भी इसी चीज की है। तो मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करते हुए एक बार फिर आप सबको अपनी शुभकामना देता हूँ, बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ, सुनने के लिए, धैर्य पूर्वक सुनने के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सुनना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि जो हम लीडर्स होते हैं ना, लीडर्स को सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता, सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। कठिन कार्य है सुनना, क्योंकि हमको लगता है कि हमें सब पता है। जबकि अच्छे लीडर की तरह का अगर हम सुने, समझें, ज्ञान प्राप्त करें, सीखें, तो हम आगे बढ़ते चले जाते। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और एक उम्मीद कि अच्छा लीडर
मरते दम तक सीखता रहता है और सबसे सीखता रहता है, नीचे वाले से भी, ऊपर वाले से भी और खुद से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुरलीधर जी, थैंक यू रॉय साहब, थैंक यू। Thank you so much, sir. I mean, it has been a wonderful, inspiring session. और उतना ही नहीं, and not only have you shown us the different qualities of leadership that we need to showcase on a day-to-day basis, लेकिन साथ में इतना अच्छे से मोटिवेशन करते करते लास्ट में हमारे सुनने की कला को भी जो है इतना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी बना दिया। तो इट्स आई मीन गुड दैट वी आर फीलिंग गुड दैट आई मीन वी हैव बीन एबल टू establish one of the qualities today right now in front of you. So I'm sure that we'll be able to establish the rest of the qualities also and prove to you. And thank you so much, sir. But it's a heartfelt gratitude to you that in spite of your and in spite of the challenges that you are facing currently, that you have spared the time and you have beaten all the odds to be here. We are very, very, very grateful to you, sir. Thank you so much. Please take care and get well soon. And we hope to keep listening to you and hearing your words of wisdom in times to come. Thank you so much, sir. Thank you, Murali. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, everybody, for being here patiently, being part of this session, and privileging us your presence. And thank you, Dr. Ranjan Roy, for being on this platform, giving us your support in conducting this event today. Thank you so much. Thank you, Francis, sir, for gracing this occasion today and giving us this opportunity to felicitate you. And thank you, every single one of you who have been here. I understand that, there might have been few of you who would have felt a little bit of challenge with the language, but I'm sure that all of you have got the gist of it, what a good leader is all about. And we look forward to your support in the coming times also. Thank you so much. Thank you so much, everybody. And I think it will be incomplete if I don't thank the team that has put in a lot of efforts to get this function online today, which is the Panchtantra platform team. So thanks to each one of you for being here. And Binu sir, Shaiju sir, Manju madam, Radhakrishnan sir, Mukesh sir, for all the support and ensuring that this program is success. And of course, the backend team of Robinson, Aman, and everybody who has contributed to success of this program. Thank you so much, everybody. Binu sir, would like to add something? Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. The link has been shared, Binu sir? Yes, it's already. Yeah. Sure. Okay. Right. Kindly give your feedback so the certificates will be sent on your mail. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Francis sir, thank you. Thank you so much. Vinu sir, thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. It was a wonderful session. We really enjoyed. There's a lot of insight has been given and well organized. Thanks a lot. I'm really thankful for inviting me into this session and being honored. Thank you very much, all of you. Thank you, Francis.